اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ احمد رحمان خان بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں فارمر آئی جی پی، اور اس کے علاوہ اگر کہا جائے تو کراچی سندھ کی سچویشن پہ بہت گہری نظر شعیب سیڈل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پہلے احمد، یہ جو سچویشن ساری بنی ہوئی ہے، ہم نے ہفتہ پہلے بھی بات کی، دوبارہ بھی بات کی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چھیننے اور چوری کے واقعات، مسئلہ اب یہ ہے دیدہ دلیری کے واقعات، گلی گونو کھدروں سے لے کر بزی اسٹریٹس، وہاں پہ لوگ گولی چلانے سے جو ہے دریغ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا وجہ اس دلیری کی سمجھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں فیصل ایک تو یہ کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بڑی سنسان گلیوں میں وارداتیں ہوا کرتی تھیں، رات کے اوقات میں کسی کو لوٹ لیا کرتے تھے لوگ، لیکن اب اتنی دیدہ دلیری ہے کہ ماڑی پور روڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پمپ پر مسلح ہو کر ملزمان آتے ہیں، باقاعدہ گارڈ سے اسلحہ بھی چھینتے ہیں اور اس بڑے ویپن سے پوری واردات مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بینک کے باہر سے، بالکل ڈھابے پہ بھی، بالکل بینک کے باہر سے شہریوں سے پیسے لوٹ لیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے جو ہم پولیس افسران سے اس پر بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ منشیات کے عادی افراد ہیں جو اپنی نشے کی لت پوری کرنے کے لیے اس طرح وارداتیں کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اب وہ گولیاں چلانے سے بھی گریز نہیں کرتے کیونکہ وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ گولی چلا دیتے ہیں۔ لیکن کیا منشیات کراچی میں بنتی ہے؟ نہیں، یہ باہر سے آ رہی ہے، یہ اسمگل ہو کے یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ تو ادارے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب وہ ان چیزوں کو بھی تو روکنا ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے نا۔ مطلب ایک چوکی تو نہیں بنی ہوئی، کوسٹ گارڈ بھی ہے، کسٹم بھی ہے، پھر رینجرز بھی ہے، پھر پولیس بھی ہے، تو یہ ان سارے اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ اگر کراچی سے منشیات کا خاتمہ ہوگا تو اس کے ہی پیرالل اسٹریٹ کرائم میں بھی واضح کمی آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں لے کر چلنی ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ سیف سٹی پروجیکٹ آپ کے یہاں نہیں ہے، کوئی کیمروں کی سہولت ہی میسر نہیں ہے، تو جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ واردات کرتا ہے اور اس کے بعد فرار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جی 2300 تو کیمرے لگے ہیں شہر میں، اگر اس میں فوٹیج بن بھی گئی تو وہ ایسی ہوگی کہ اس میں کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو اسی وجہ سے پولیس افسران بھی آج کل دکان والوں کو یا کسی بڑی جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کو یہ بول رہے ہیں کہ کم از کم کیمراز جو ہیں وہ اچھے لگائیں تاکہ کم از کم ملزمان اگر کوئی واردات ہو جائے تو ان کی شکلیں تو واضح ہو سکیں۔ تو یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارے شہر میں کہ سیف سٹی پروجیکٹ ہی نہیں ہو سکا۔ اچھا احمد، ویسے اگر چہرے واضح ہو بھی جائیں نا تب بھی ہماری جو پولیس ہے وہ بہت زیادہ سستی اور کاہلی دکھاتی ہے ان کو گرفتار کرنے میں۔ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، کراچی کے کس طرح سے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، کس طرح سے کراچی والے خوف میں مبتلا ہیں، آپ کو ذرا دکھاتے ہیں۔ کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے خلاف شہریوں نے کیا ہے انوکھا احتجاج، منہ پر ٹیپ باندھ کر رہے ہیں شہری احتجاج۔ جانتے ہیں ان کے اس احتجاج کی وجہ اور اس کا حل کیا ہے۔ جیسے آپ کو علم ہے کہ پچھلے 11 دن میں 13 قتل ہوئے ہیں کراچی میں، نوجوان لوگ جو اسنیچنگ میں مارے گئے ہیں، اور میں انتظامیہ سے یہی درخواست کروں گا کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں، شہری قانون اپنے ہاتھ میں نہ لینے کہیں، جس طرح اقدام کا یہ قتل ہو رہے ہیں۔ پولیس نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، ایس ایس پی صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ اسنیپ چیکنگ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہم تیزی لائیں گے اور نفری کو بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ کہ علاقے میں بہتری آئے۔ پہلے اس کی آبادی کو کنٹرول نہیں کیا گیا اور اب جرائم کو ان کنٹرول چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ اس کے خلاف سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے، سمے قاتل ہے، کراچی کے شہری یکجا ہیں اور تمام لوگوں میں بہت بڑا سینٹیمنٹ کریٹ ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی لاوا پک کر باہر آ سکتا ہے۔ کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم نے خوفزدہ شہریوں کو مجبور کر دیا ہے احتجاج پر۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اسٹریٹ کرائم پر قابو نہ پایا گیا تو احتجاج کا سلسلہ وسیع کیا جائے گا اور شہر کے ہر چوک چوراہوں پر احتجاج کیا جائے گا۔ کیمرمین محسن علی کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں اب وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور خاموش احتجاج ہے، منہ پہ ٹیپ لگا لیا ہے، شاید اسی وجہ سے کہ اتنے عرصے سے چلا رہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب سابق آئی جی شعیب سیڈل صاحب۔ شعیب صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر، نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس بڑی اہم پوسٹ رہی ہیں بلکہ یو ہیو بین انٹو دس تھنگ، پولیس ریفارمز میں آپ ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں۔ سر کیا ایشو ہے سندھ کا، کراچی کا، کیوں یہاں پہ نہیں
रुकते जराइम। देखें, सिंध के शहर कराची जो है, ये एक तो बड़ा शहर है, हमारे इकनॉमिक हब है। इसकी पॉपुलेशन जो है आपको पता ही है कि अबव 20 मिलियन है। तो कुछ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो सिर्फ दिन के वक्त होती है, रात को नहीं होती। तो लेकिन अबव ऑल जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी अपनी पुलिस फोर्स में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो बाकी पार्ट्स हैं, जिनमें प्रोसिक्यूशन सर्विस है, जुडिशरी है, उसके बाद फिर प्रिजन्स हैं, फिर वापसी इनटू द सोसाइटी है, तो ये हमारा सारा जो निज़ाम है वो बहुत ही आउटडेटेड है। और इसको जब तक हम रिफॉर्म नहीं करते, जब तक हम इसको मॉडर्नाइज नहीं करते, सही, तो हमें ये उम्मीद रखना कि जी ये कोई मौजज़ा हो जाएगा और कराची खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कराची में पास्ट में बहुत एफर्ट्स हुई हैं। इसका जो जब एक्सट्रीम सिचुएशन बिगड़ती थी तो उस वक़्त स्पेशल मेजर्स कुछ लिए जाते थे और वक्ती तौर पे एक पैलिएटिव के तौर पे कुछ बेहतरी आ जाती थी। लेकिन जब तक हम इसको एक वे में इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कराची सिर्फ कराची के लिए नहीं या सिंध के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और कराची में जो कुछ होता है उसका इफ़ेक्ट पूरे मुल्क पे आता है। सही, तो इसलिए हमें इसके लिए बहुत सीरियस एफर्ट्स जो हैं उनकी ज़रूरत है। अब ये जो है स्ट्रीट क्राइम है या हीनियस क्राइम है या वायलेंट क्राइम है, ये वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कराची का इकोसिस्टम जो है वो जब थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो उसमें फिर उसका इफ़ेक्ट जो है जी जी, वो क्राइम सिचुएशन पे आता है। सही, अब अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाना चाहेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल कि कराची जैसा कोई शहर दुनिया में नहीं है बगैर एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव से जो सेफ सिस्टम है उसके बगैर नहीं चल सकता। तो अब कराची में अभी तक कोई 3-4 महीने पहले की बात है जब अखबारों में ये आया था कि जी 22 बिलियन से हम कोई 10,000 कैमरे कराची में लगाना चाहते हैं जी। अब ज़रा इस बात को मैं क्लैरिफाई थोड़ा करूं कि लंदन में इस वक्त हर 10 अफराद जो हैं उन पे एक सीसीटीवी कैमरा है। सही, शेख साहब कता कलामी की माजरत, हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, हम लंदन क्यों जा रहे हैं? हम लाहौर देख लें ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आप तो रहे हैं इनके दरमियान में, आपने क्या देखा कि वो क्या रुकावट है, वो क्या हर्डल्स हैं जो कि कैमरास का निज़ाम लाने को रोकती है? वो क्या चीज़ है, वो किसकी आशीर्वाद हासिल है जो कराची के निज़ाम को बेहतर करने से रोकती है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो होगी जो कि रिफॉर्म्स लाने से, कराची के शहरियों को अच्छा मुस्तकबिल देने से एक रुकावट बनती चली जा रही है। वो क्या चीज़ है आपकी नज़र में? ये देखें, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिक्स ऑफ पुलिस रिफॉर्म जो है ना वो है फैक्टर। और ये पॉलिटिक्स आज की नहीं है, ये 47 की है। आप हैरान होंगे कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनने के दूसरे-तीसरे दिन बाद ये कराची में ऐलान किया था कि जी कराची में बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी बनेंगी, कराची में लेबर आएगी क्योंकि फैक्ट्रीज़ लगेंगी। तो कराची का जो उस वक़्त का निज़ाम था उन्होंने उसके बारे में कहा कि वो निज़ाम आउटडेटेड है, इसलिए मैं यहाँ बम्बे वाला निज़ाम जो है वो लाना चाहूँगा। अब बम्बे वाला निज़ाम वही था जो लंदन वाला था। तो
चुनाचे इसके लिए 48 में एक नया लॉ जो है वो पास किया सिंध असेंबली ने, और वो लॉ बाद में चला गया कायदे आज़म के दस्तों के लिए। लेकिन चूंकि उस वक्त तक ये खबर कुछ लोगों को पता चल गई हुई थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए उस पे एक बेहुदा सा ऑब्जेक्शन लगा के उस असेंबली से पास शुदा लॉ पे ये कहा गया कि जी इसमें कुछ टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, और ये कह के उसको वापस कर दिया गया। और ये शायद दुनिया में वाहिद लॉ हो जो असेंबली से पास शुदा है और आज तक उस पे अमल नहीं हुआ, इसलिए कि गवर्नर जनरल के दस्तखत ना हो सके। उसके बाद 25-30 कमीशंस और कमेटीज इस मुल्क की पुलिस को ठीक करने के लिए बन चुकी हैं। उसमें यूनाइटेड नेशंस का कमीशन है, उसमें जापानीज का कमीशन है, उसमें कि जो पुलिस है, जितनी उनकी तादाद है कराची में, क्या वो दुरुस्त अंदाज में काम कर रहे हैं? या जो अफसरान हैं, चलें उन्हीं की बात कर लेते हैं, अफसरान और एहलकार क्या दुरुस्त अंदाज में काम कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि क्वांटिटेटिव इनएडिक्वेसीज क्या हैं, और दूसरी है कि क्वालिटेटिव पोजीशन क्या है। जो यूएन स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हर 450 अफराद पे एक पुलिस वाला होना चाहिए। अच्छा, हम इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, नंबर 1। ये तो है क्वांटिटी की बात। अब जब क्वालिटी पे आएंगे तो हमारे 30% 40% लोग तो किन ड्यूटीज पे लगे हुए हैं जो नॉन पुलिस ड्यूटीज हैं, जो वीवीआईपी की या वीआईपी की ड्यूटीज हैं, जो जिनके लिए कि कोई अलग निज़ाम होना चाहिए, वो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पुलिस में उनको काउंट ही नहीं करना चाहिए। और पुलिस को अपना जो मेन काम है इसका प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ये है इसकी जो 2 ड्यूटीज हैं। अगर आप इनके लिए इनको तैयार करेंगे और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस पे बेस्ड रखेंगे कि जी इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कराची में था 95 में, तो उस वक्त तो आपको सबको याद होगा कि एक गदर की कैफियत थी। बिल्कुल। इसके बावजूद उस वक्त जो कार स्नैचिंग थी वो लोएस्ट थी, और जो डिटेक्शन रेट था वो हाईएस्ट था। तो इसमें अब क्या चीज़ें हैं? एक तो ऑब्वियसली ये चीज़ है कि आपने फोर्स को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना है। उनको ये हर वक्त होना चाहिए कि भाई हमें, अगर हमने गलत किया तो हम पनिश होंगे, अच्छा, और अगर हमने सही किया तो हम अप्रिशिएट हो गए। राइट। अच्छा शुएब साहब, अब अगर उस वक्त का, इफ यू अलाउ मी टू जस्ट डिग इन वन क्वेश्चन, 2 चीज़ें होती हैं जब हम कराची पुलिस की बात करते हैं। पहली चीज़, हमारे पास नफरी नहीं है, उसका आपने बिल्कुल जवाब दिया कि जो नफरी है वो आपने वीआईपीज़ पे लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको हटा के भी जितनी नफरी है वो भी शायद उतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास, एक चीज़। दूसरी चीज़ कहा जाता है जी कि जी हमारे पास बजट नहीं है, फंड्स नहीं हैं। ये भी समझ से बाहर है कि अगर हिफाजत के लिए बजट और फंड्स नहीं तो फिर किस चीज़ के लिए। एंड द थर्ड थिंग जो कि थोड़ी सी पॉलिटिसाइज है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसका भी आप हमें ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। कहा यह जाता है कि जी मकामी और गैर मकामी का एक झगड़ा है जी कराची में। मुख्तलिफ सियासी जमातें ये कहती हैं कि अगर कराची से ही कोई होगा फ्रॉम द रैंक्स, फ्रॉम द नॉन कमीशन रैंक टू द कमीशन रैंक, तो वो ज़्यादा यहाँ की गलियाँ मोहल्ले समझ पाएगा, वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर पाएगा। अगर कोई कहीं और से आएगा तो शायद वो इतना दिल से भी काम नहीं कर पाएगा और वो यहाँ की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन उसको भी नहीं समझ पाएगा। डू यू एग्री टू दैट? देखें, इसके दोनों तरफ आर्गूमेंट्स हैं, प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं।
आइडियली तो ये मैं समझता हूँ कि अगर हमें अच्छे ऑफिसर्स अवेलेबल हों तो, और अगर वो लोकल भी हैं तो इट इज़ बेटर, ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया में मिक्स ही चलता है। बेसिकली तो जो आपने सामने रखना है पैरामीटर सिलेक्शन के वक्त, वो ये है कि ऑफिसर्स की वर्थ क्या है। अगर आप उसको लोकल और नॉन लोकल पे, ज़्यादा लोकल मैटर करता है, जो थाने लेवल पे लोग हैं सही है, उनको बिल्कुल लोकल पॉपुलेशन से आना चाहिए, उनको वो अच्छी तरह से समझते हों और उनको साथ उनका जो इंटरेक्शन है वो ह्यूमैन किस्म का इंटरेक्शन हो। लेकिन हमारा सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, जब हम लोकल की बात और नॉन लोकल की करते हैं जी, वो है कि जो पुलिसिंग है वो किस हद तक इंडिपेंडेंट है। सही है, अगर आप पुलिस जो है उसको लगा दें कि ये फलानी पार्टी के नीचे काम करेगी, या उसका लोकल होने का मतलब ये है कि एक पार्टी के खिलाफ चलती रहेगी जी जी, और एक के हक में चलती रहेगी, तो वो तो एक मर्सनरीज का रोल है, बिल्कुल, पुलिस का रोल नहीं है। वो पुलिस का रोल है टू एक्ट irrespective of party affiliation and to act even against the party in power. सही, You know, policing is on behalf of the entire society, not on behalf of any minister or any chief minister or prime minister or whatever. जी, तो जब तक हम ये बेसिक चेंजेस जो हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चेंजेस हैं, इनको हम इंट्रोड्यूस नहीं करते और उन पे खुद अमल नहीं करते। अभी देखें, आप भर्ती के वक्त भी आप सिफारिशें लेते हैं या पैसे लेते हैं, एग्जैक्टली, फिर आप उनकी ट्रेनिंग भी सही नहीं होने देते, फिर जब उनके वो डिसिप्लिन करने का वक्त आता है फिर आप इंटरवीन कर लेते हैं। तो ये सर, कोई हमने तो तमाशा ये बना दिया हुआ है ना, इंटेलिजेंस इसको प्रोफेशनल पुलिस नहीं कह सकते हम। इंटेलिजेंस शेयरिंग का सर अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, निज़ाम हो तो कितनी सहूलत हो सकती है मुजरिम को पकड़ने में? क्योंकि हम ये देखते हैं कि कराची में जुर्म होता है, फिर वो यहाँ से पंजाब चला जाता है या किसी और सूबे चला जाता है, वहाँ जुर्म होता है तो वो यहाँ आ जाता है करके जुर्म, और इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है तमाम सूबों के दरमियान, जिससे बहुत मसाइल होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, वाकई ये एक मसला है या नहीं? नहीं, ये सीरियस मसला है, नो डाउट। लेकिन देखें, हम टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे तो तब है ना। अब मैं वो आप कैमरों की बात कर रहे थे तो लेट मी पुट यू इन पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने कहा था कि जी लंदन में हर 10 अफराद पे एक सीसीटीवी कैमरा है। चाइना का एक शहर है ताइवान, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कैमरों की वहाँ है और वहाँ 8 अफराद पे एक कैमरा है, ठीक है। अब कराची पे आ जाएं। कराची अगर दिन के वक्त से 20 मिलियन का शहर होता है और इसमें अगर अभी आप प्लान कर रहे हैं कि जी हमने 10,000 कैमरा लगाना है, तो इसका मतलब क्या है कि 2,000 बंदे पे जब आप 10,000 लगा भी लेंगे, अभी लगाते लगाते आपको 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, वो अलग बात है। और फिर उनकी क्वालिटी क्या होगी और उसमें कितना पैसा इधर उधर साइफन हो जाएगा, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट। लेकिन अगर आप लगा भी लें तो 20,000 पे एक कैमरा आएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जो कुछ इस वक्त पोजीशन है उससे स्लाइटली बेहतर होगी। लाहौर की बात हुई, लाहौर में यस सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर है, लेकिन वो भी एडिक्वेट नहीं है। वहाँ भी आप देखें तो अक्सर खबरें आती हैं कि जी 1/3 1/4 कैमरे आउट ऑफ ऑर्डर हैं। किस लिए आउट ऑफ ऑर्डर हैं? कि उनके लिए बजट नहीं है। तो जब तक हमें देखें, ये जितनी है ना टेक्नोलॉजी पुलिस रिलेटेड, इसका अलग से इंतज़ाम करना है। या ये इंतज़ाम करेगा नेशनल पुलिस ब्यूरो, या इसको हमें डालना पड़ेगा जो हमारा एक होता था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके खाते में। सही है। अदरवाइज ये जो है कि जी आज इस फर्म को दे दें, कल उसको दे दें,
اور دوسرا میں بہت ضروری بات اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سارے کے سارے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہو. ہوتا یہ ہے کہ چند ایک کیمرے گورنمنٹ لگا دیتی ہے، چاہے وہ پولیس لگائے یا چاہے کوئی اور لگائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پاپولیشن میں جتنے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بینکس ہیں فار ایگزامپل، جتنے ریسٹورنٹس ہیں، جتنی شاپس ہیں، آپ نے صرف ان کو سٹینڈرڈز پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے ایک لا پاس کرنا ہے کہ یہ جس بزنس کنسرن کی انکم ہے یا اس سے زیادہ ہے اس کو اس سٹینڈرڈ کا کیمرہ جو ہے وہ لگانا ہے اور اس کیمرے کو پولیس کا جو کنٹرول روم ہے اس کے ساتھ کنیکٹ جو ہے پولیس کر دے گی. صحیح. تو دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اچیو یہ جو فگر ہے کہ جی 10 لوگوں کے لیے ایک کیمرہ ہوگا یا 20 لوگوں کے لیے ایک ہوگا. ابھی تو ہم 20,000 کی بات کریں گے، وہ بھی جب ہمارے 10,000 لگ جائیں گے تو جی. اور وہ لگنا اتنا آسان نہیں ہے اس میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سر جو آپ بات کریں نا کیمراز کی، اگین وہی بات ہے کہ اگر ہونا چاہیے، یہ اگر مگر کی کہانی میں نا بیچارے ہمارے عوام پس جاتے ہیں اور اسپیشلی کراچی کے عوام تو بہت زیادہ پس رہے ہیں کیونکہ دن پہ دن یہ جو ریشو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے. احمد آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے.